Hello everyone, I am Karan Kumar, Public Relations Officer at Send Educational Organization, and I welcome you all in today's session on cyber crimes. And today our guest speaker is Ms. Shiza Qureshi. Welcome, Ms. Shiza. She is an advocate of High Court Thank you very much. handling the cyber crimes, defamation, and human trafficking, and she would be throwing light on cyber crimes today in our session. It's over to you, Ms. Shiza. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for the kind introduction, Karan, and thank you to the Sindh Education Organization for this insightful, rather very important session on the topic of cyber crimes. This is an emerging area of law. I hope हमारे साथ lawyers भी मौजूद हैं. I'll keep it bilingual. मैं इसको पूरा English में नहीं रख रही so that everyone can understand easily. So I hope we have lawyers here. ये बड़ा ही emerging किस्म का एक area of law है which is not being understood nicely अभी और इस पे इतना precedent भी develop नहीं हुआ but as we see that हम लोग एक internet boom के ऊपर हैं and we have so much shifted on the internet and web post COVID. जब इस तरह की कोई भी चीज होती है तो उसके pros and cons हम दोनों ही देख रहे होते हैं. Now with the developing precedent and the cases I deal with because one of my major specialty to deal is cybercrime. So today I have divided my lecture into almost 6 portions, which include which I will make you go through कि cybercrime है क्या, how it is defined, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. Then we'll discuss the legal framework. Obviously, I'm a lawyer. I cannot go without discussing the legal framework. फिर हम इस पे थोड़ा बहुत इसको law को navigate करेंगे कि इसके अंदर include क्या क्या होता है. उसके बाद देन वील सी कि सोसाइटियल इम्पैक्ट्स क्या हैं, हमारे कोर्ट का प्रेसिडेंट क्या कहता है, कितनी एक्सेप्टेंस है लॉ की, कितनी नहीं है. एंड देन I have kept always I always keep a special portion जिसमें मैं लड़कियों को, यंग लड़कियों को एंड आई गिव अवेयरनेस टू वुमेन स्पेशली जो कि बहुत वनरेबल हैं और जो कि बहुत ज्यादा इस साइबर क्राइम के अंडर थ्रेट आई रहती हैं. आए दिन हम केसेस देखते हैं जिनमें 90% ऑफ द टाइम्स women are under threat. I hope everybody agrees with me on that. 10% yes, I have been dealing cases with men also जिसमें blackmailing है, जिसमें financial frauds वगैरह हैं because micro financing banking अब भी वो सारा भी साइबर पे आ गया है. So harassment के केसेस ज्यादातर खवातीन ही फेस कर रहे होते हैं. So and last of the session, I'll keep a portion for question and answers and consecutive discussion जिसके अंदर और किसी को कुछ ऐड करना है या कोई questions करना है सो वो कर ले. This is how we are going to take this session. So first of all let's understand कि cyber crime है क्या. Let's just first understand. So something basically is so it's crime. हम ये एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि अंडर पीपीसी मदर लॉ है हमारा पाकिस्तान पीनल कोड एंड उसके अंडर फिर ये है कि हम इसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस ही डील करते हैं. एक बात क्लियर हो गई. So something is criminal activity which is through computers or through a connected network or a network is cybercrime. So एक दो चीजों में मुझे बड़ी come to me and say कि हमें जो अगर कोई थ्रेट कर रहा है on the phone or over the text messages तो क्या वो साइबर क्राइम है? No, it is not cyber crime. Why? Because आपकी रेगुलर सिम के ऊपर आपके जो रेगुलर फोन कैरियर के sorry, I'm actually facing a very bad network error at my side, so That's I apologize. that's okay, ma'am. अच्छा, No problem. तो हम लोग where were we? मैं आपको समझा रही थी कि how रेगुलर फोन कॉल्स या कोई इस तरह के थ्रेटनिंग मैसेजेस अगर आपको करता है या कोई ब्लैकमेल करता है या कोई भी इस तरह का एक्टिविटी करता है थ्रू द रेगुलर फोन कैरियर, सो दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अंडर द साइबर क्राइम लॉ. दो चीजों को हमने डिफरेंशिएट करना है. व्हाई? बिकॉज that is a mean which is not connected to the internet. आप कोई भी सिम अपने स्मार्टफोन के अलावा भी किसी भी फोन में डालें, आप यू आर कनेक्टेड, राइट? सो whatever you are receiving through that medium does not constitute into cyber crime law. Cyber crime law वहीं तक हम पे तब attract करेगा और apply करेगा when the communication is through different web mediums. For example, WhatsApp, Messengers, Skype, Zoom. जिस तरह हम बैठे हुए हैं यहाँ पे कोई अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है
that would be reported under the cybercrime law. आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, XYZ, जितने भी अभी एग्जिस्ट करते हैं, स्नैपचैट, ये मैं उन एप्स के नाम ले रही हूँ जो कि बहुत वाइडली एंड मोस्टली यूज्ड है. सो दिस इज ऑल. इसके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो दैट कम्स अंडर द साइबर क्राइम लॉ. मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्या लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर क्राइम. बात हम जब कर रहे हैं सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन की, ये बात हम कर रहे हैं जब डिग्निटी की, because these are the two most things which are being compromised through the cyber, whatever is connected through the cyber. So हम constitution की बात ना करें तो हमें that would be a little unfair before moving to the main law of PICA. हमारे पास आर्टिकल 9 मौजूद है, which is right to life, which explains the security of a person. So वो हम सबके पास मौजूद है. That is the fundamental right given by our constitution. Then we have article 14, which is inviolability of man. ये भी सारा हमें dignity और किसी person की dignity को trespass करने का right हम सबके किसी के पास नहीं है. So this is guarded by the fundamental laws provided by the Constitution of Pakistan. फिर उसके बाद we have an interesting article, which is article 19. That is the freedom of speech. अब होता ये है कि साइबर क्राइम के उसमें आके हम इसको मिसयूज कर जाते हैं. एट टाइम्स हमने देखा है देयर आर लॉट ऑफ हीटेड डिबेट्स. अब आगे जब मैं साइबर क्राइम की टाइप्स आपको अकॉर्डिंग टू द पीका करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको समझ आएगी कि हाउ एंड यू मस्ट, हम जो कोई भी हम में से इंटरनेट यूज करता है क्लियरली अंडरस्टैंड के हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के उसमें आके हम हेट स्पीच कर जाते हैं एंड देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स इनटू द साइबर क्राइम. उसके ऊपर फिर हमारे पास इंटरनेशनल काफी ज्यादा ट्रीटीज हमने जो पाकिस्तान रेटिफाई करता है वो मौजूद है. बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मुझे बहुत सारा कुछ कवर करना है, सो आई स्किप थ्रू दैट. बट mainly we have Universal Declaration of Human Rights, Article 12 है उसका. We have ICCPR, Article 17 and Article 19 describes the security and the dignity of someone. And then we have an interesting convention on the elimination of all forms of discrimination against women. We have Article 16 जिसमें बहुत specifically ये बात की है कि किसी की dignity या किसी की private life या family life को trespass करना is a crime and it is against the human rights. It's a violation. So main ये major treaties हैं जो पाकिस्तान ने भी ratify की नहीं है, और तो मैंने कहा कि मैं एक दफा आपको वहां से भी दे रहा हूँ. Now let's go through the main special law which is addressing the cyber crimes or the possible cyber threats. Pakistan में जो legislation है that is known as the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, meaning thereby 2016 के अंदर इनैक्ट किया गया. वी कॉल इट पीका इन शॉर्ट फॉर्म हम लोग इसको. एंड देन 2016 के बाद अब लेटली इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं इन सम ऑफ द प्रोविजंस, वो मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी. बट मोस्टली एंड फॉरमोस्टली अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव. So before delving into comprehensively into the law of the Pakistan जो साइबर क्राइम को डील करता है, एक बात ये हमने जरूर देखनी है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है. अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें और अगर हम ये सारा डेटा देखें तो साइबर क्राइम का प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता. फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी इसी तरह से, इवन बिकॉज आई एम डीलिंग विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो मेरा साइबर वालों से भी काफी राब्ता रहता है. आई एम टॉकिंग अबाउट US इन स्पेसिफिक. तो उनके यहाँ तो मेनली उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग साइबर क्राइम through cyber हो रही है. So it's a global problem because obviously we are sitting in a global world. So now moving forward to PICA. 2016 में मैंने जैसे बताया ये enact किया गया to combat cyber crimes and enhance the cyber security. Different forms of electronic crimes इसके अंदर काफी comprehensively defined हुए हैं. And then there is a way, then there is rules कि इसको किस तरह procedures है, क्या follow करना है, which is the competent authority to do so. काफी comprehensive law है, लेकिन मैं इसको आपको skim through करके गुजारूंगी because of the shortage of time. हमने हर चीज कवर करनी है. So let's talk about what is including in the cybercrime law of Pakistan. So basically, it's unauthorized access to the information system and data.
साइबर टेररिज्म एंड हेट स्पीच, सेक्शन 10, सेक्शन 11 आप एड्रेस करते हैं, जो मैं हेट स्पीच की बात कर रही थी. देन इट्स आइडेंटिटी थेफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड and forgery, explained in section 12 and 13 of the act. फिर offenses against the dignity and the modesty of a natural person, section 20 and 21 is ये सबसे strongest, by the way. Before I go into further explanation, ये वो दो sections हैं जिनके ऊपर हमारी सबसे ज्यादा FIRs लॉन्च होती हैं और जिसके ऊपर सबसे सीरियसली कार्रवाई होती है. Now let me explain you ये है क्या. When we are talking about the objectionable pictures and the videos, और आजकल ये जिस तरह भी हम लोग ये रिवेंजस तौर पे ब्लैकमेल करते हैं, हरास करते हैं, I'm talking about both of the genders, but mostly it is happening with females. तो ये उनको, and trust me on this, because मेरा तो दिन रात का वास्ता है FIR साइबर क्राइम वालों से, and I'm dealing with these cases. ये केसेस सबसे ज्यादा सीरियसली और सबसे ज्यादा एक्सपेडाइट करके ये लोग इनको फॉलो करते हैं, अगर आपका एविडेंस, आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है. सो वी कैन नॉट से कि एक हमारा जो जनरल परसेप्शन है ना इस बात का कि पाकिस्तान में कोई भी लॉ सही से फॉलो नहीं होता या किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता. सो प्लीज कम आउट ऑफ दैट मिसकंसेप्शन, बिकॉज मेरा अभी तक का अल्हम्दुलिल्लाह 100% का रेट है अरेस्ट कराने का इन केसेस के अंदर. I can say that मेरी अभी तक 100% की सक्सेस है. जितने केसेस मेरे पास आए, मेड श्योर के उनके अंदर अरेस्ट हूँ और उसके अंदर हम ब्रेक थ्रू दें. So and unfortunately talking about both of these sections, पाकिस्तान इस वक्त सबसे नंबर 1 पे है when we talk about porn revenge. तो इसमें हम मजीद फर्दर बात करेंगे, we'll talk about it, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग सबसे पहले एक दफा स्पीका को गो थ्रू कर लें. ओके, देन वी हैव स्पैमिंग एंड स्पूफिंग, ये भी एक साइबर क्राइम लॉ है. अच्छा, उसके अलावा जो हमारी एक अनऑथराइज्ड issuance of SIM cards है, that is also dealt under the law. ये मैं आपको मोटे मोटे sections बता रही हूँ. Otherwise, from section 3 to till section 30, almost 27, 28, there are a lot of, obviously there are a lot of offenses which are constituted under the law. Moving forward, we have cyber stalking and cyberbullying. So there is a difference between hate speech and cyberbullying, which I will explain later. लेकिन ये भी under law है. Then there is one another thing which is a problem, which is an emerging problem. It is a very heinous crime. I'm talking about child pornography right now. It is dealt under this said law, and we had the जो जिनमें मैंने amendments की बात की शुरू में. So amendments हमने इन्हीं sections के अंदर देखी थी, which is section 22 of the law. फिर उसके ऊपर 22A आया, 22B आया, जिसको उन्होंने मजीद कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन कर दिया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ साथ अगर आप इस तरह किसी बच्चे को एंटाइस करते हैं या उसको ऑनलाइन की ट्रेनिंग देते हैं फॉर गेटिंग इनटू सच एक्टिविटीज, दैट इज आल्सो अ क्राइम. सो यस, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव. And then it is unauthorized access of anyone's system. आप किसी का सिस्टम अगर है, this hacking, जिसको हम easy words में अगर hacking कहें, hacking, accessing anyone's data, pretending to be someone else, impersonating, and all of it online, on the online sources. So it is constituted as cybercrime. यहाँ तक हमें बात क्लियर होगी. Then we have, जब अगर प्रोसीजर के अंदर जाएं तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि प्रोसीजरली ये नॉर्मल क्रिमिनल लॉ जिस तरह डील किया जाता है, नॉर्मली जिस तरह एक क्राइम को डील किया जाता है, ये उससे डिफरेंट है. द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट अपसाइड डाउन. सो हमारी जो इसमें पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, दैट वाज द FIA के अंडर साइबर क्राइम विंग्स हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए गए. हर मेन शहर में एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम ऑफिस बनाए गए जहां पे आप अंडर the cyber criming अपनी complaints both online and offline lodge कर सकते हैं. So this is the competent authority if किसी को अगर मजीद अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना. मूविंग फॉरवर्ड, पॉसिबल साइबर क्राइम थ्रेट्स हो क्या सकते हैं, ये सारे तो हमने ऑफेंसेस बता दिए, बट let's just understand it in a better form, in a more comprehensive way.
मैलवेयर एंड रैंसमवेयर देखिए, अभी मैंने जिक्र किया कि अगर आप किसी का डाटा, फॉर एग्जांपल इट्स माय कंप्यूटर एंड यू वांट टू हार्म मी, और इट्स एक्स वाई जेड कंप्यूटर और उसने उसको कोई डाटा हार्म करना है या कोई डाटा उससे वो करना है, तो वो उसको एक मैलवेयर इन अनदर फॉर्म ऑफ वायरस, तो वो आप इंटेंशनली किसी को थ्रू एनी मेल, थ्रू एनी सोर्स, give us examples of what, if you can name. Please raise your hand and then you can ask a question. ज्यादा questions बीच में मत पूछें, लेकिन if there is a legit question, I can break through और मैं उसको आंसर कर सकती हूँ. आप किस चीज की एग्जाम्पल्स कह रहे हैं? Hello everyone. We will be having question answer session in the last, so please let the speaker complete. So we'll be having two question answer sessions. Ma'am, you can continue. Inshallah, yes, sure, for sure we are going to have another session with the question and answers. Okay, so कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करते हैं which is installed in someone's device or someone's computer or someone's any kind of device which is definitely connected to the internet, और आपकी वजह से उसका वो डाटा ब्रीच होता है या वो डाटा उड़ जाता है, या वो लॉस्ट हो जाता है, सो या वो इनक्रिप्ट हो जाता है, सो वो जो है दैट इज ऑल्सो साइबर क्राइम, और उसको प्रूव अगर आप कर देते हैं तो उस पर फिर अंडर द साइबर क्राइम लॉ कार्रवाई होती है. देन इट्स फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग. आप लोगों ने फिशिंग का, आई रियली वांटेड कि ये सेशन हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव करते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास इतना नहीं है, एंड आई हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग नाउ. सो व्हाट इज फिशिंग? आपने आजकल देखा होगा कि जब आप बैंक को कॉल करते हैं उनकी ऑनलाइन ऐप के ऊपर या फिर उनकी हेल्पलाइन के ऊपर, देयर इज अ रिकॉर्डिंग विच सेज कि कभी भी बैंक आपको फोन नहीं करेगा और फोन करके आपसे आपका सिक्योरिटी कोड, एटीएम कार्ड का पिन, डेबिट, क्रेडिट, व्हाटएवर कार्ड यू आर हैविंग, आपसे कभी भी वो नहीं मांगेगा. उसका रीजन ये है कि व्हाट इज फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग? यू प्रिटेंड टू बी समवन, इस तरह का कोई ट्रस्ट वर्दी एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल अ बैंक, अ कॉलेज, खास तौर पर ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए यूज होता है, टू ऑब्टेन द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ समवन and to gain a wrongful financial gain from someone. आजकल बैंक के फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं. आप लोगों ने देखा था अभी कुछ दिनों पहले, मुझे भी आया था, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग सारे ही बहुत करते हैं. सो इफ देयर इज अ मैसेज ऑन योर कैरियर कि इस लिंक पे क्लिक करें, हमें आपकी लोकेशन नहीं मिल रही, और उस लोकेशन के थ्रू वो आपका डाटा हैक कर लेते थे, फोन हैक कर लेते थे. सो हर दफा हम देखते हैं हर एक अरसे बाद एक नई चीज आई हुई होती है. सो इट इज basically this is phishing and social engineering कि someone calls you or someone pretends to be a social entity, a trusted entity, और वो आपसे आपका पर्सनल डाटा लेके आपको कोई फाइनेंशियल या फिर पर्सनल नुकसान पहुंचाते हैं. सो फिर आइडेंटिटी थेफ्ट, दिस इज अ लिटिल सिमिलर टू फिशिंग, बट उसमें फिशिंग में ये होता है कि someone tries to call you विद द रेफरेंस ऑफ अ बैंक और इस तरह की किसी बड़ी सोशल, उसमें इसमें ये होता है कि समवन फॉर एग्जांपल प्रिटेंड्स टू बी मी. अभी लाइक डेज बैक इट हैज हैपेंड टू अस, हमारे साथ खुद ये हुआ है. लाइक समबडी वाज प्रिटेंडेड टू बी माय हस्बैंड. उनके फेसबुक से उन्होंने हमारी पिक्चर्स ली, वो एक नया अकाउंट बनाया, देन ही गेन्ड अ व्हाट्सएप आल्सो, और हमारे उन्होंने फेसबुक से टारगेट करना शुरू किया पोटेंशियल पीपल, हमारे प्रोफेशनल खास तौर पे कॉन्टैक्ट्स को, कि हम कहीं इमरजेंसी में और हेल्प करें. एंड आई किड यू नॉट, उन्होंने, उस बंदे ने अभी तक पता नहीं कोई 3-4 लाख रुपए वो हमारे नाम के ऊपर ले चुका है, और हमें अब पता चला, एंड वी आर जस्ट अपोलोजाइजिंग. जस्ट इमेजिन कि किस तरह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज होती है. एंड ऑब्वियसली वी हैव ट्रैक द पर्सन, हम लोगों ने जो करना था कर दिया, लेकिन जाहिर है कि एक नुकसान जाहिर है कि काफी लोगों का हुआ. कुछ लोग तो फौरन समझ गए कि नहीं, दिस मस्ट बी, अब ये इसके अंदर कोई देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट, लेकिन जिन लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया या सोचा नहीं, उन्होंने राइट अवे पैसे उस बंदे को दे दिए. वो 5-6 डिफरेंट अकाउंट्स के एक बैंक से वो ऑपरेट कर रहा है. प्राइमरी उसका जो हब था दैट वाज द फेसबुक, और उसके ऊपर से उसने व्हाट्सएप पे लोगों को कनेक्ट किया. दैट हैज पर्सनली हैपेंड टू अस. सो with a personal example, this is identity theft. फिर then we also call it impersonating. जो law है उसके अंदर impersonation का भी word use होगा. So this is more of identity theft. और उसमें यही है कि आप किसी को impersonate करते हो और उसके credibility के ऊपर या नाम के ऊपर आप लोगों को या तो harass करते हो या blackmail करते हो, और the first and the foremost thing, आप उससे कोई financial फायदा लेते हो.
Then comes cyber stalking and harassment. So अब harassment and cyber stalking को let's just understand this separately. What is stalking? Stalking is that someone is saying, आप प्रोफाइल पे जाते हो बार बार, फॉर एग्जाम्पल दे आर ब्लॉगर्स, इवन मेरा अपना प्रोफाइल जो है इंस्टाग्राम का, दैट इज पब्लिक बिकॉज ऑफ purely official reasons, right? I connect with women, मेरा human rights का काम है, so I have to connect with people of every kind. मुझे हर level के ऊपर लोगों से connect करना होता है, especially I have a big group of girls जो कि मुझे follow कर रही हैं, तो मैंने अपना, लेकिन उसके का मतलब ये नहीं है कि जो मुझे follow कर रही हैं उनके पास कोई लाइसेंस है कि वो मेरी प्राइवेट पर्सनल लाइफ या मेरी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर उनका जो दिल करे वो करें। और मैंने अगर किसी को कहीं से रिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक किया हुआ है, वो अगेन एंड अगेन मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट जो बार बार आप किसी को भेजते हो, चलो दैट इज ओपन प्रोफाइल्स की तो बात और हो गई। कई प्रोफाइल्स मेरे हैं जो लॉक्ड हैं, द पर्सनल प्रोफाइल्स। तो अगर कोई बार बार आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपको मैसेजेस कर रहा है, दिस इज स्टॉकिंग। And then you are again and again, visiting the profile and trying to contact the person where the person does not wants to contact you. So this is cyber stalking, and this जब इसकी एक हद खत्म हो जाती है ना, तो ये harassment की तरफ चल पड़ता है। फिर एट टाइम्स हमने ये देखा है कि जो एट टाइम्स पे मेल्स भी और फीमेल्स भी एक दूसरे के साथ, नो जेंडर बाइस, आई एम अ लॉयर सो आई हैव नो जेंडर बाइस, बट मैं सिर्फ आपके सामने वो चीजें रख रही हूँ जो हमारे सामने ज्यादा देखने में आती हैं और ज्यादा सोसाइटी में हो रही हैं। सो प्लीज डोंट थिंक दैट आई एम अ फीमेल लॉयर एंड आई एम ऑल अगेंस्ट मैन, इट्स नॉट लाइक दैट। एनीवे, कमिंग बैक, हम ये देखते हैं कि वो हरासमेंट की तरफ चला जाता है कि जबरदस्ती आपको आपके पर्सनल डाटा को ऑब्टेन कर लिया जाता है थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हैं, आपकी पर्सनल पिक्चर्स हैं, और वो फिर हरासमेंट इस तरह से फ्रॉम स्टॉकिंग ये हरासमेंट की तरफ चला जाता है। तो दिस इज ऑब्वियसली अ क्राइम, और इसके ऊपर भी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। ये इस तरह नहीं होता कि आप स्पैम अकाउंट्स बनाएं और 6 डिफरेंट अकाउंट्स बनाएं तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। आईपी एड्रेसेस सारी ट्रेसेबल होती हैं, एफआईआर के पास सारा सिस्टम मौजूद है। हाँ, ये है कि अच्छा लॉयर आपके साथ हो तो बस फिर काफी मसला हो जाता है फॉर समवन हु इज ट्राइंग टू हरास समवन लाइक दैट। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास है डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीच को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और थोड़ा सा और कर दूंगी कि किसी मॉलवेयर के या वायरस के चक्कर में उस राउट से, या फिर आपके पास यू आर आपका को वर्कर है, यू वर्किंग इन द सेम कैबिन, आपको समहाउ पासवर्ड पता है, आपका एक्सेस है किसी के डाटा पे, एंड देन यू गो फॉर अ डेटा थेफ्ट, या आप उसके डाटा को मिसयूज करते हो, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। फिर मैंने बताया कि इशुएंस ऑफ सिम्स है। अच्छा, इसके अंदर, इस सारे मामले के अंदर माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकिंग का बहुत ज्यादा एक इन्वॉल्वमेंट है, और ये बहुत ज्यादा फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं। इट्स जस्ट नॉट दी स्टीरियोटिपिकल बैंक्स, आपकी जो जैज कैश, मोबी कैश एंड फलाना कैश एंड ये कैश एंड वो कैश एंड मोर ओवर, मेरे समेत हम सब लोग अपने फोन के ऊपर बैंक की एप्स को एट टाइम्स यूज कर रहे होते हैं फॉर ट्रांजैक्शंस। तो बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के हैक्स और पासवर्ड्स, एंड देन हम जब कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ओवर द इंटरनेट। Yes, ma'am, you are audible. I'm so sorry. This is again and again just the internet. अब मैं phone से वापस I'm just back from the phone. Okay, so I was explaining you some different kinds of. So yes, अच्छा, अब हम अगर थोड़ा सा लॉ को नेविगेट, अब मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली आई हैव एक्सप्लेन्ड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम जिसके अंदर हम जिसके द पीका इज बेसिकली एड्रेसिंग different kinds of cyber threats and cyber crime. So let's just go through navigating the law. What are the reporting mechanisms? देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ. So what FIA has done? FIA has two kinds of procedures जिसके अंदर आप अपनी complaints को submit कर सकते हैं. So there is an online portal. आप FIA की वेबसाइट के ऊपर जाएं. It is a very easy go through process. आप उसके थ्रू आप अपनी कंप्लेन को सबमिट कर सकते हैं. ऑनलाइन सबमिट हो जाती है. आपने अपने प्रूफ्स अटैच करने हैं. इट इज अ वेरी इजी गोइंग प्रोसेस. आप उसको, जिसको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है तो वो कर सकता है. दूसरा तरीका ये है कि आप इन हैंड कंप्लेंट देते हैं साइबर क्राइम के ऑफिस जाके. वहां पे आईओस बैठे हुए हैं, वहां पे सारा स्टाफ है, वहां पे इनफैक्ट फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं
और बल्कि जितने भी ये ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स और वीडियोस के केसेस होते हैं जो फीमेल्स के होते हैं, ये उन्हीं को ज्यादातर मार्क होते हैं और वही डील कर रही होती हैं जस्ट एज द मैटर ऑफ कंफर्ट। जाहिर है कि एक फीमेल के साथ जरा ज्यादा कंफर्ट होता है। दूसरी बात ये, व्हेन वी टॉक अबाउट, मेरे पास ये बहुत क्वेश्चन आता है, मैडम प्लीज तरीका बता दें, कैसे कंप्लेन करनी है, क्या करें, और फिर जो कंप्लेन ऑनलाइन की हुई है वो एड्रेस नहीं हो पा रही। मैं उसमें आपको थोड़ा सा एक टिप दूंगी। इट्स नॉट जस्ट आई एम ट्राइंग टू एडवर्टाइज लॉयर्स या फिर एक लॉयर की जॉब को। अगर तो आपका केस है साइबर बुलिंग का, हरासमेंट का, एंड इफ इट्स नॉट दैट सीरियस, और ये साइबर बुलिंग और हरासमेंट और हेट स्पीच चली जाती है एट टाइम्स रिलीजियस वाली साइड के ऊपर, जिसके ऊपर आपके ऊपर ब्लास्फेमी के लॉज भी अट्रैक्ट कर जाते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद ऑनलाइन इंटरेक्शंस लाइक दैट। आई होप एवरीवन इज म्यूटेड, मुझे काफी ज्यादा आवाज आ रही है। ओके, सो हाउ डू वी कंप्लेन इनटू द साइबर क्राइम? मैं ये आपको सजेस्ट सिर्फ ये कर रही थी कि अगर तो आपका केस है थ्रेटनिंग और ब्लैकमेलिंग का, एंड बाय थ्रेटनिंग एंड ब्लैकमेलिंग मैं स्पेसिफिकली सेक्शन 20 और 21 की बात कर रही हूँ। आप लोग अपने पास, ये बाय द वे अपने पास आप गूगल करें तो ये ऐप खोल सकते हैं, यू कैन इजीली फाइंड इट, यू कैन जस्ट टाइप पीका 2016 और आपके सामने पीडीएफ खुल जाएगा। सो कमिंग बैक टू द कंप्लेंट मैकेनिज्म, अगर तो आपका केस है इस तरह का, डू नॉट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, हमेशा एक लॉयर के थ्रू जाएं। अगर आपका कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है जिसमें एक बहुत हैंडसम अमाउंट, वैसे तो हर अमाउंट ही जाहिर है नुकसान हुआ होता है तो वो आपके लिए कीमती होती है, एंड इट इज नुकसान तो है, लेकिन अगर वो अमाउंट एक एक्सीडिंग लिमिट से ज्यादा है तो प्लीज गो थ्रू अ लॉयर, बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ये भी कर देती हूँ कि साइबर क्राइम ऑपरेट कैसे करता है, एफआईआर ऑपरेट कैसे करती है। सो नॉर्मली वी गो टू अ पुलिस स्टेशन, अगर हमने कोई क्रिमिनल जिससे हमने एफआईआर करानी है, हम एक जाते हैं थाने में, कंप्लेन देते हैं, कंप्लेन के ऊपर आईओ देख लेता है, एफआईआर लॉन्च होने वाली, इन्वेस्टिगेशन करके आपकी एफआईआर हो जाती है। आई होप एवरीवन नोज द प्रोसेस, बट इन साइबर क्राइम यहाँ पे उल्टा प्रोसीजर है। यहाँ पे आप जब अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं और अपने आप एविडेंसेस के साथ उनको देते हैं, तो सबसे पहले उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो ये कॉन्फ़िगर पहले करते हैं कि इसके ऊपर एफआईआर बनती है कि नहीं बनती। एफआईआर साइबर क्राइम में लॉन्च करना आसान काम नहीं है बाय द वे। सो राइट अवे एफआईआर नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, जो the weight of the evidence you have in your hand, और फिर अगर तो वो सेक्शन 2021 या चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मैटर है तो वो फौरन टेकअप किया जाता है और उसको ऑन प्रायोरिटी वो फौरन दे आर इन एक्शन और वो उसको डील करते हैं। सो ये तो हो गए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स, और उसके साथ मैंने आपको लीगल प्रोसीजर भी समझा दिया। फिर वंस द एफआईआर इज लॉन्च्ड, ये केसेस फिर अंदर ये लोग पहले इनसाइड साइबर क्राइम सेल दोनों तरफ से कंप्लेनेंट को भी बुलवाते हैं और अक्यूज को भी बुलवाते हैं, उनसे अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अगर जरूरत पड़े, ये जो ज्यादातर 20 और 21 की कंप्लेंट्स में पड़ जाती है, ये अरेस्ट कर लेते हैं, एंड देन योर केस गोज थ्रू द सारा ट्रायल वाला प्रोसीजर जो एक सेशन कोर्ट के अंडर जो आपका नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल है उसमें चलता है। और उसमें हमारा जो प्रेसिडेंट डेवलप हुआ है, बिकॉज 2016 का लॉ है, अगर आप केस लॉज निकालें और अगर उसको सर्च करें, अगर यहाँ पे कोई लॉयर्स हैं, 2022 ऑनवर्ड से हमारा जो है वो ज्यादा डेवलप्ड एक मैकेनिज्म है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो बेस रिजेक्ट हुई हुई है वो हरासमेंट पे, ब्लैकमेलिंग के ऊपर, और ये ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स और वीडियोस के ऊपर हुई है, रिगार्डलेस ऑफ द मैटर के वो कंसेंट से शेयर हुई थी, और लेकिन कंसेंट से शेयर करने का मतलब ये नहीं था कि आप उनको सारी दुनिया के अंदर पब्लिश करते हैं। तो इस पे मैं आऊंगी। आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस टॉपिक वेरी स्पेशली एंड स्पेसिफिकली, स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स और फीमेल्स, लेकिन ये है कि फॉर ऑफेंडर्स या जो लोग ये सोचते हैं कि हम करके इसमें से निकल जाएंगे, दैट इज नॉट द वेरी सिचुएशन। सो मूविंग फॉरवर्ड, फिर मैंने आपको बता दिया कि वहां पे फीमेल ऑफिसर्स मौजूद होती हैं आपके असिस्टेंस के लिए, और वो लोग आपकी बात भी सुन लेते हैं अगर आप उनको बताओ। लेकिन
फिर भी मैं एडवाइस ये हमेशा करती हूँ कि थ्रू अ लॉयर जब आप जाएंगे आपको फर्क खुद समझ आ जाएगा, बिकॉज ये जो ब्लैकमेलिंग के मैटर्स होते हैं ये बहुत टाइम टिकलिंग होते हैं, इनमें आपको फोर्थ विद आपने तेज काम कराना होता है बिफोर अल्लाह ना करे कोई आपका बड़ा नुकसान हो जाए. सो डोंट टेक मैटर्स इनटू योर हैंड्स जस्ट बिकॉज अ मैकेनिज्म इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. और फिर ऑनलाइन कंप्लेंट्स का मसला ये है कि दिन के अंदर अगर किसी ने किसी को अब्यूज भी किया है फेसबुक पे तो उसने ऑनलाइन कंप्लेंट जमा करा दी है. सो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम हमारा उतना अपग्रेडेड या उतनी मैन पावर एफआईए के पास नहीं है कि वो सारा दिन बैठ के हजारों के हिसाब से कंप्लेंट्स को और एक एक को फौरन से एड्रेस करें. सो दैट टेक्स टाइम. और अगर इस तरह का मैटर है तो उसमें हम दे आर टाइम सेंसिटिव. बेसिकली दैट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो मूविंग फॉरवर्ड ये तो आपके राइट्स भी हो गए अंडर द पीका के आप क्या क्या राइट्स हैं और आप किस तरह से लीगल असिस्टेंस ले सकते हैं. और फिर मैंने आपको ये भी समझा दिया कि रिपोर्ट किस तरह करना है साइबर क्राइम. यू हैव टू बी एज प्रिसाइज एज इनफ. लेकिन जब हम साइबर क्राइम की कोई कंप्लेंट को ड्राफ्ट करते हैं एज लॉयर्स हमें पता होता है कि ये मैटर है और इस पे हमने ये लिखना है और इतना लिखना है कि ये इस अंडर दिस सेक्शंस लॉज हो जाए. तो वो एक लॉयर ही समझ सकता है. वो ऑब्वियसली आप में या कोई भी लेमैन हो तो वो नहीं इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता. सो केस स्टडीज की तरह अगर मैं जाऊं तो मैंने आपको ये बता दिया, आई ऑलरेडी मेंशन के 2022 से हमारा जरा थोड़ा प्रेसिडेंट डेवलप होना शुरू हुआ है और सबसे ज्यादा सीरियसली टेकन एंड एक्सपेडाइटली फॉलोड आर द कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 20, 21 एंड देन 24. तो उसके अंडर हम ये सारी कंप्लेंट्स को ज्यादा एक्सपेडाइटली ओके. तो अब हम अब मैं जा रही हूँ ऑलमोस्ट आई एम जस्ट अबाउट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर. और उसमें सबसे पहले सेक्शन 5 में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजीज. क्या मेजर्स हम प्रोटेक्शन मेजर्स ले सकते हैं. बिकॉज देखिए हम इंटरनेट इस्तेमाल करना तो बंद नहीं कर सकते. हमारा एजुकेशन है, वी हैव वर्क, वी हैव बैंकिंग, वी हैव सो मच. अब तो डॉक्टर्स भी अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स ओवर द फोन्स. इवन मेरी कंसल्टेशंस जो होती हैं वो बुक्ड होती हैं और वो पेड होती हैं. सो अगर कोई बंदा कराची में बैठा हुआ है या जिस तरह अभी आप लोग बैठे हुए हो या इवन आउट ऑफ पाकिस्तान, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट आउट ऑफ पाकिस्तान और उनको मेरे से कोई बात पूछनी है, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं. सो इट इज एन इनएविटेबल टूल नाउ. लेकिन हम ऑब्वियसली हमारे पास अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म अपार्ट फ्रॉम द लॉ भी होना चाहिए बिकॉज हमारी अपनी सेल्फ विजिलेंस इज द फोरमोस्ट थिंग एंड देन देयर कम्स द लॉ व्हिच इज देयर टू डिफेंड अस. उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं. तो टेक्निकली आपके जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके अकाउंट्स हैं, आप उनके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें. दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वुड. कि हम लोग बहुत स्टीरियोटिपिकल किस्म के बड़े इजी पासवर्ड्स यूज करते हैं विच आर इजी टू हैक, विच आर इजी टू गेस, विच आर इजी टू यू नो जस्ट कैच. तो हम अपने आप को इस तरह से. और फिर वो जो व्हाट्सएप के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, बिकॉज अभी 1 महीने पहले आई वाज वॉचिंग के एक प्रॉपर एक सीजन आया हुआ था जिसमें लड़कियों के व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक हो रहे थे. नाउ हम ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप तो हैक ही नहीं हो सकता. आई एम सॉरी, यू आर अंडर सिवियर मिसअंडरस्टैंडिंग. हर चीज जो कि बनाई गई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूज, उसको तोड़ना भी उतना ही आसान है. एंड जो लोग बनाते हैं वो तोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो पहले ईजाद करते हैं और वो उसको बाद में आपके यूज में. सो द डिजिटल फुटप्रिंट जो आप छोड़ गए उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो वहां से हट जाए. सो यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. और अपनी सिक्योरिटी एप्स की सिक्योरिटी को, फिर लोकेशन शेयरिंग हर ऐप मांगती है, हर ऐप आपसे मांगती है. आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे आपका पूरा का पूरी गैलरी का एक्सेस मांगती है, आपसे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांगती है. आप ये सारी चीजें मेक श्योर करें कि हर चीज बस आंख बंद करके उसको आप अपने फोन को परमिशन ग्रांट ना करते जाएं. आप ये देख लें कि कुछ ऐप्स हैं जिनमें अगर आप फॉर एग्जांपल आपको एप्लीकेशंस यूज करनी है, लोकेशन की जरूरत है, तो यू कैन ऑलवेज टैप ऑन टू द ऑप्शन ऑफ व्हाइल यूजिंग द ऐप. आपको हर वक्त आपकी लोकेशन उस ऐप को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है. दैट्स नॉट नेसेसरी. तो ये सारी चीजें हैं, ये आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं. फिर रेगुलरली अपडेट योर सॉफ्टवेयर, कीप अपडेटिंग योर एप्लीकेशंस और उनको आप इस तरह से रिफ्रेश करते रहे ताकि if there is any bug or if there is any virus, any malware into your device तो वो रिफ्रेश होता रहे. उसके बाद आप अपना डेटा जो है वो एनक्रिप्शन में रखें. इस तरह का
इस तरह का जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर एंड एंटीवायरसेस और उसके ऊपर दें। फिर इसमें हमारी जो सामने सबसे ज्यादा आता है वो बिहेवियर प्रैक्टिसेस हैं। बिहेवियर प्रैक्टिसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले दिस इज फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स, अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी आपने ऑनलाइन शेयर नहीं करनी, चाहे अगला बंदा कितना भी ट्रस्टवर्दी क्यों नहीं है। आप लोग हैरान होंगे ये सुन के कि मैंने केसेस किए हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एक सबसे ज्यादा ट्रस्टेड रिलेशनशिप आपका इससे ज्यादा क्या होगा? एंड देयर हैव बीन ब्लैकमेलिंग, देयर हैव बीन डेटा ब्रीचेस, देयर हैव बीन ब्लैकमेलिंग ओवर व्हाट वुड आई से पर्सनल कंटेंट और पर्सनल इंटीमेट कंटेंट। जब आपस में कोई लड़ाई हो गई या बात कोर्ट तक पहुंच गई, डिवोर्स हो गई या कोई चाइल्ड कस्टडी का मामला आया, कोई पैसों का लेन देन आया, आई मीन यू कुड से एनीथिंग, तो अपना पर्सनल डेटा आप लोगों ने बिल्कुल भी इस तरह शेयर नहीं करना। शेयरिंग ऑफ पिक्चर्स, शेयरिंग ऑफ वीडियोस, आई कैन नॉट टेल द अमाउंट ऑफ टाइम्स के मैं ये हर दफा हर जगह जाके बोल चुकी हूँ कि द पर्सनल विजिलेंस, द पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग के कोई भी ऐप, मैं ये हर जगह बैठ के सुनती हूँ, मैं बड़ा हंसती हूँ जी, स्नैपचैट बहुत सेफ है क्योंकि वहां पे उसी वक्त चीज उड़ जाती है। सो प्लीज अपने आप को इन सारी गलत फहमियों से निकाल लें कि कोई एप्लीकेशन इस तरह सेफ है। अपना पर्सनल डाटा और इस तरह का डाटा जो कि कभी बाद में आपके लिए ब्लैकमेलिंग का या इवन लाइफ थ्रेटनिंग, बिकॉज हमारे यहाँ ये बातें ऑनर किलिंग पे चली जाती हैं। मैंने बहुत सारे डन नंबर ऑफ केसेस जो कि वही लीड कर रहे होते हैं जब अल्लाह ना करे इस तरह की कोई ब्लैकमेलिंग का मैटर होता है। इट इज वेरी सीरियस। सो जब आप कहते हैं ड्रॉप बॉक्स में रख दी, गूगल ड्राइव पे रख दी, आउटक्लाउड में रख ली, वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे एक पासवर्ड हैक के ऊपर, एक पासवर्ड शेयरिंग के ऊपर या गलती से वो सारा डेटा या तो पूरी फैमिली में शेयर हो गया या बाहर निकल गया, और उसके बाद फिर इसका एंड यहाँ तक नहीं है। फिर इसका एंड व्हाट इंटरनेट डू यू यूज? मेरी जैसे मैंने अभी मेंशन किया दैट आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद यूएस में जितने भी ये साइबर टेररिज्म वाले हैं, और क्योंकि हम ट्रैफिकिंग पे काम कोलैबोरेटिवली कर रहे होते हैं तो वी आर ऑलवेज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो वो हम मुझे बता रहे थे कि ये जो इंटरनेट आप यूज करते हैं दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। आई होप आप सब लोग डार्क वेब के एक जो टर्म है यू आर फेमिलियर विद दैट। तो अब आपका जो डाटा है दैट्स नॉट जस्ट यू कमोडिटी, वो मिसयूज होके, इवन इफ इट्स नॉट यू, फोर्जिंग आपको पता है, यू नो फोटोशॉप, आपको पता है कि अब एआई और इन सारी चीजों की वजह से जहाँ पे हमें हेल्प भी बड़ी मिलती है चीजों के अंदर, हम सब उसकी हेल्प जनरेट करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो गेटिंग इन टू द कर्स। सो जितनी जितनी ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट आती जाती है, हमें अपने पर्सनल डाटा और अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ और ज्यादा से ज्यादा केयरफुल होने की और कॉशियस होने की जरूरत है। इस तरह का डाटा अगर जब भी आप शेयर करते हैं या आप ये समझते हैं कि अगला बंदा तो कम्प्लीटली ट्रस्टवर्दी है, मेड बी एनी जेंडर, खासतौर पे मैं लड़कियों से मुखातिब हूँ, आप अपना पर्सनल फुटप्रिंट छोड़ ही हैं और वो इरेजेबल नहीं है। आपका एतबार अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक एप्लीकेशन पे नहीं, उसका फुटप्रिंट आपका डिजिटल फुटप्रिंट, इट इज लाइक यू नो यू जस्ट मार्क योरसेल्फ। आपने थंबप्रिंट जिस तरह करते हैं ना, कागजों को थंबप्रिंट करते हैं, वो प्रिंट आपका डिजिटल फुटप्रिंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज ये मैं लेक्चर दे रही हूँ ना, अब ये फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ दिस इज गोइंग टू बी ऑन द डिजिटल मीडिया, और ये रहेगा, उसको मैं खत्म नहीं कर सकती। सो इट्स मोर लाइक दैट। सो एनीवन सेइंग इट टू यू कि जी व्हाट्सएप सेफ है, जी इंस्टाग्राम सेफ है, फलानी चैट सेफ है, फलाना सेफ मोड सेफ है, नथिंग इज सेफ। प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं, बिकॉज अल्लाह ना करे व्हेन दीज थिंग्स टर्न अदरवाइज। आपकी सोच है कि ये केसेस, मेरे जितने भी मेल कॉलीग लॉयर्स हैं वो मुझे आके पकड़ा देते हैं कि सॉरी दिस इज सो नर्व रैकिंग, के वैसे भी ऑब्वियसली लड़कियों के साथ एक कंफर्ट नहीं होता, लेकिन दिस इज सच अ टाइम टिकलिंग बॉम्ब ऑन यू कि जब तक वो बच्ची या लड़की ब्लैकमेल हो रही है, वो साथ साथ आपको भी उसी तरह से मैसेज करके तंग कर रही है, एंड दिस इज बियॉन्ड 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 टेरेबल। अल्लाह ना करे अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में। मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज मैं क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल टाइम रखूंगी। एवरीबडी प्लीज कीप योर क्वेश्चंस इन योर हैंड। मैं सबके क्वेश्चंस आंसर करूंगी, बस थोड़ा सा, आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश दिस। फिर ये है कि अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स। आपको
आप मैंने अक्सर देखा 90% लोगों का व्हाट्सएप जो होता है वो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग पे होता है, यानी जिसने आपको जो XYZ मटेरियल भेजा है वो ऑटोमेटिकली आपके फोन में डाउनलोड हो रहा है। डू वन थिंग, आज सबसे पहले जाके उस सेटिंग को टर्न ऑफ करें, बिकॉज एक तो इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, मेरे लिए तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है, बिकॉज हर चीज को आप डाउनलोड करके नहीं देखना, अननेसेसरी वीडियोस, मीम्स एंड ऑल दैट, आई डोंट वांट इट। दूसरी चीज, यू नीड टू बी सेफ। आपको नहीं पता जो चीज आप डाउनलोड कर रहे हैं, सिर्फ उस चीज को आप डाउनलोड नहीं कर रहे, उसके साथ एज एन एक्स्ट्रा देयर मस्ट बी समथिंग जो आपका पूरा फोन को कॉम्प्रोमाइज कर। और फिर अननेसेसरी लिंक्स के ऊपर आप ये लिंक पे क्लिक करें, अंदर से नाम निकलेगा और ये सारी चीजें, आई मीन वी आर वॉचिंग दिस। सादे लोग जो होते हैं स्पेशली गांव वगैरह में, वो तो बेचारे बहुत ज्यादा इसका शिकार होते हैं। बट नाउ यू बीइंग दी यंगर जनरेशन या जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज काइंडली डोंट फॉल इनटू दोस ट्रैप्स। ये पूरा आपका का पूरा द एंटायर डाटा, योर कॉन्टैक्ट्स आर कॉम्प्रोमाइज। मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको एक से एक केस बता दूं जो मेरे अपने हाथों से गुजरा है, तो वो तो बिल्कुल रियल लाइफ चीजें हैं। दूसरी बात ये कि जब भी आपके पास कोई ईमेल आए फ्रॉम एनी सोर्स दैट इट्स अ बैंक, आई एम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आई एम हॉस्पिटल XYZ, उसको जरूर आप एक दफा उसको वेरीफाई कर लें कि इट इज द सोर्स और हम सही करें। फिर ये फूड पैंडा डिलीवरीज के चक्कर में और ये ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। You also need to cross, yes, and with Uber crime, Uber Careem, abhi hum because I'm also a part of the internal committee for the Home Department Government of Punjab for Trafficking and Bonded Labor and Illegal Migration. So last हमारा जो बोर्ड मीटिंग था उसके अंदर हमें ये पता चला कि फूड पैंडा के राइडर्स जो हैं वो एक्टिवली इस वक्त बच्चों को ट्रैफिक करने के अंदर मसरूफ हैं, बिकॉज ज्यादातर जगह के ऊपर फूड पैंडा के राइडर्स को कोई नहीं पूछता, वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो राइडर है, जस्ट लेट हिम बी, ठीक है। लेकिन उनके साथ और जो बाइकिया वाले हैं, खास तौर पे बाइकिया वाले बहुत ज्यादा बच्चे और यंग लड़के लड़कियों को ट्रैफिक करने के अंदर है। सो जब हम न्यू एज के साथ जैसे जैसे मूव करते हैं, हमें न्यू एज प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, एंड देन वी नीड टू बी विजिलेंट। दैट इज व्हाई दिस अवेयरनेस सेशन इज ऑल्सो नाउ ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस। उसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपना साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। दे नीड टू पुट इन मनी इन दिस, दे नीड टू पुट एफर्ट इन दिस। हम लोग ये सारी चीजों को समझते हैं कि ये फारिग हैं, इनको जरूरत नहीं है। स्पेशली हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स जो होते हैं, दे आर एल्डरली पीपल, और वो तो बिल्कुल भी इन बातों को मानते नहीं है। सो दैट इज द रीजन जब हमारी सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं, दे आर टोटली ऑफ द, लिटरली उनको कुछ पता ही नहीं होता ये क्या हुआ है, बिकॉज दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग, they are not being sensitized and they are not being aware कि ये किस तरह से सब कुछ हो रहा है। Now I'm going to go to, because questions बड़े ज्यादा आ रहे हैं तो मैं इसको sum up करूंगी। Last part, online safety awareness for women। लड़के बिल्कुल ना जाएं क्योंकि उनके लिए भी थोड़ी बहुत कोई इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान पॉर्न रिवेंज लेने में इस वक्त नंबर 1 के ऊपर है। आप जाके स्टैट्स चेक कर लें। खवातीन चाहे ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रही हैं, चाहे बिजनेस कर रही हैं, चाहे जो भी अपना काम कर रही हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज मेरे पास 97%, 100% आउट ऑफ अगर मैं कहूँ तो हरासमेंट के और ब्लैकमेलिंग के और एक्सटॉर्शन के केसेस और खवातीन किए जाते हैं, जिसके अंदर हर एज, हर स्टेटस की खवातीन शामिल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये कह देते हैं कि जी जब पिक्चर गई है इस तरह की या कोई वीडियो गई है तो वो कंसेंट से गई है। सो कंसेंट का भी एक थोड़ा सा ये समझ लें कि कंसेंट सारी जिंदगी के लिए नहीं जाती। एक तो पहली बात ये कि सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे बैठ के बिल्कुल इस चीज को एडवोकेट नहीं करी। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस एंड यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम इट। बट आई हैव, छोटे भाई बैठे हुए हैं मेरे साथ, मे बी माई सम ऑफ माई कोलीग्स आर हियर आल्सो। इसका मतलब ये नहीं है दैट इट इज मेंट टू बी, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं, आपको किसी ने दे दिया कि आप किसी को हरास करें। सो इसके लिए लॉ मौजूद है एंड यू कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर। सो इट इज अ बोथ वे, दोनों तरफ जिम्मेदारी और दोनों तरफ समझने की जरूरत है कि एक तो पहले फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, यू डोंट हैव टू डू दिस, नथिंग इज सेफ। और अगर ऑन द अदर हैंड आप कर रहे हैं तो ये मत समझ के करें कि आप पकड़े नहीं जाएंगे।
ठीक है। दूसरी बात ये कि इवन बिटवीन फीमेल टू फीमेल फ्रेंड्स आई हैव बीन डीलिंग विद द केसेस, अब तो इट्स गुड माशाल्लाह 5-6 years ये एरिया ऑफ लॉ मैंने तब एक्सप्लोर किया, मैंने तब इस पे काम करना शुरू किया जब कोई भी इस पे ज्यादा अभी भी इतना कोई वो नहीं करता, बट मेरा ये एक बड़ा फेवरेट नीश ऑफ लॉ है मुझे। नाउ इट्स एन एक्सपर्टीज ऑल्सो, तो आई एक्टिवली डील विद दिस केसेस। फीमेल टू फीमेल फ्रेंडशिप्स के अंदर भी हम ये देखते हैं कि इन एनी एट एनी इवेंट विच इज नॉट वेरी प्लेजरेबल, अच्छे ताल्लुकात नहीं हुए क्योंकि यू आर बीइंग फ्रेंड्स, आप एक दूसरे की बहुत सारी चीजों का आपको पता होता है। एक केस तो मेरे पास ये आया कि एक भाभी ने नंद के साथ इस तरह किया और तकरीबन लड़की मरते मरते ही बची, एंड दे वर ऑफ द सेम एजेस, और दोनों बैठी हुई थी साइबर क्राइम ऑफिस में मेरे सामने। I was representing the sister-in-law, भाभी उधर बैठी, and she is also mother of a daughter, and she is leaving no mercy for her. तो ये it is genderless, I think so. और इसके अंदर ये है कि आप you have to regulate your behavior, you have to understand that please remember this word, आज के बाद please एक word आप सबको याद हो जाना चाहिए, that the digital footprint leaves forever on this online sources. So cyber stalking भी है इसमें, harassment वगैरह, क्योंकि वो सारी चीजें एड्रेस हो रही हैं, बट ये ज्यादा फीमेल्स करती हैं। So I think so I will be ending my session here. I have covered everything which मैंने जो अपने lecture के अंदर include किया हुआ था, and I am going to open the house for the questions. So you can unmute. I don't know how do you have to take questions. The moderator can please hop in और एक एक करके questions देते जाएं, मैं आंसर करती जाऊं। Thank you very much, ma'am, for such a wonderful session. So, guys, if anyone wants to ask question, they can drop in the chat box or they can raise their hand. So I will unmute them. मैम, एक तो शुरू में आपने जो बात की थी रिवेंज पॉर्न की, तो ट्विटर की जो पॉलिसीज हैं वो कंटेंट हटाते नहीं है कभी भी, तो उसके लिए क्या किया जाता है फिर? और दूसरा मेरा ये सवाल था कि आपने जो सेक्शन 20 की बात की, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, तो क्या उसका जो क्रिटिसिज्म है जो हम आर्मी पे करते हैं या पॉलिटिशियंस पे करते हैं, वो उसमें फॉल करता है? अच्छा देखिए, एक तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम, मेरा ये जो एक सेशन था दैट वाज वेरी मच फॉर द सोशल प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग अंडर द साइबर क्राइम। उसके अंडर हम डेफेमेशन लॉ हमारा ऑलरेडी आपको पता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी बड़ी क्रिटिसिज्म चल रही है, वो उसको अट्रैक्ट करता है, वो डेफेमेटरी, इसकी भी सेक्शंस लग जाती हैं, जिस तरह आजम सवाती साहब का लैंडमार्क केस है, आप जरूर पढ़िएगा, मैं साइटेशन शेयर कर दूंगी आप लोगों से, उसके अंदर की डेफेमेशन की, उसके अंदर और फिर साइबर क्राइम की काफी ज्यादा एक्ट्स लगी, एंड इट्स अ क्लासिक साइबर क्राइम केस, ठीक है। तो वो कर जाता है, सेक्शंस लगाने को तो आप लगाते जाएं, मगर क्लासिकली वो दूसरे लॉ के अंदर अब हम डील करते हैं। सो इफ इट्स ऑनलाइन तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है। और दूसरा आपका अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ट्विटर। देखिए, हम लोग यहाँ से भी, जब हम लोग के फेसबुक के ऊपर या ये जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ना, इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो एफआईआर को भी यहाँ से रिटर्न रिक्वेस्ट उनको भेजनी पड़ती है, बिकॉज हम लोग के पास इनकी ऑथराइज्ड हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में तो नहीं है ना, किसी के भी, मेटा के तो नहीं है, और ना ही ट्विटर के हैं, विच इज नाउ कॉल्ड एक्स। तो हमें इनको रिटर्न रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती हैं, बार बार कंप्लेंट्स करनी पड़ती हैं, बार बार उसका एक अकाउंट या उस स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, तो कहीं जाके उसके ऊपर कोई एक्शन होता है। तो दैट इज Ma'am, there are also some questions in the chat box. जी, मेरा पूरा सेशन इस बात पे था। नूर ने कहा हुआ है, आई डोंट नो बॉय बी आर नॉट सेफ विद दिस टेक्नोलॉजी। यस, नॉट सेफ टू बी। may I ask a question? I've asked in the अब्दुल मोइज शेख, आपका जो भी क्वेश्चन है काइंडली दोबारा चैट बॉक्स में या प्लीज देखते हैं। गूगल ड्राइव पे पिक्चर्स और वीडियोस करना, हाँ मैडम, गूगल पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन आता है तो वहां पासवर्ड सेव है। देखिए, मैं आपको इसमें बताती हूँ, अगर तो आपका ये पर्सनल फोन है ना, वैसे तो कोशिश करें कि पासवर्ड याद रखें, लेकिन अगर आपने सेव किए हैं और हाँ, और फिर ये फोन बेचते जो हमें, स्पेशली विद एंड्रॉइड, सारा डाटा रिट्रीव हो जाता है। अब तो आई एम लिसनिंग के आप अपना सारा फैक्ट्री सेट करके भी फोन रखते हैं तो आपका डाटा रिट्रीव हो जाता है वापस से। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। गूगल ड्राइव के ऊपर आपकी जो नॉर्मल पिक्चर्स हैं, देखें आप
जिस तरह मैंने भी अपने बच्चों की या फैमिली की कोई इस तरह की इवेंट्स हैं उनकी पिक्चर सेव की हुई होती है, मसला उनका भी है, लेकिन ऑब्वियसली हम टोटल अवॉइड नहीं कर सकते ना, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मेरी बड़ी बहस होती है इस बात पे। मैंने स्पेसिफिकली बात की उन पिक्चर्स की जो कल को आपको ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट की तरफ आपको धकेल सकती हैं। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दोज इंटीमेट पिक्चर्स विच आर ऑब्जेक्शनेबल, जिनको हम लॉ में ऑब्जेक्शनेबल कहते हैं। काइंडली उनको अपनी किसी भी डिवाइस में, किसी भी ड्राइव, कोई भी क्लाउड, डोंट सेव देम। फेस रिवील जो होता है ऑनलाइन मीटिंग में, क्या भी हमें कोई नुकसान हो उससे हमें कोई, बड़े नाइव किस्म के क्वेश्चंस हैं। ये आप लोग मुझसे टेक्निकल उसके ऊपर, मैंने आप लोगों को एक टोटल ब्रॉडर एस्पेक्ट दे दिया कि डू दिस और दैट, डू दिस और दैट। डिपेंड करता है ना कि आप किसके साथ बैठ के ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। अगर तो वो बंदा, उसका अपना कैमरा ऑन नहीं है और आप पूरे सामने बैठे हुए हैं, इट्स अ स्ट्रेंजर, तो क्यों खतरा नहीं हो सकता आपको? आपके स्क्रीनशॉट्स लेके आपकी पिक्चर मिसयूज हो सकती है। दिस इज काइंडली कॉमन सेंस। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिन पे मैं भी सोचने पे मजबूर हूँ कि ओके, इस सेशन का कोई फायदा हुआ है। What legal challenges exist in creating and enforcing policies against cyberbullying nationally and internationally? I think you are a little late to the party. मेरा सारा सेशन लीगल चैलेंजेस और उनको केटर करने के ऊपर था। मैम I hope this is a recorded video. और we'll upload the recording of this. जी थैंक यू, इसको प्लीज देख लीजिए। How people reach to our WhatsApp. आपका WhatsApp बड़ी इजीली हैक हो जाता है किसी वेब डेस्कटॉप, आपने उसको और इवन योर कंप्यूटर वहां पे उसकी रह गई भी है, आप लॉग आउट उसको नहीं किया या अपने फोन से उस एक्सेस खत्म नहीं किया, दैट इज बूम द फर्स्ट प्लेस आपका व्हाट्सएप जाता है। और अगर आपका फोन किसी के एक्सेस में है और उसको उसका पासवर्ड पता है, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द आईफोन्स, आप ये जिस तरह लाहौर में फीस सेंटर वगैरह है वहां पे है, काफी कारीगर बैठे हुए हैं जो आपका व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं। तो प्लीज be very careful when you are sharing your personal data. I want to talk verbally. ये कौन है? अच्छा, what are some best practices for incident response and threat hunting? I can't really understand the question. Kindly ये जो भी है rephrase कर दें. What actions Hello, ma'am. can we take? So जी, Ma'am, I have unmuted Abdul Moiz, so he want to ask question verbally. go ahead. Moiz, you can unmute and ask the question. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम जैसे मैंने जो है क्वेश्चन किया था आपसे, लीगल चैलेंजेस एंड क्रिएटिंग एंड exist in creating and enforcing policies against cyberbullying internationally and nationally. So मैम अगर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो मतलब कि वो कौन सी, अगर हम लेट सपोज कि ये इश्यूज तो पास्ट में भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड कंडीशनें चलेगी और प्रेजेंट में भी हैं ये, तो अगर हम न्यू पॉलिसीज फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करें या प्रेजेंट में हम पॉलिसीज जैसे डे बाय डे न्यू पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इनको कम्प्लीटली जो है हम जो है ओवरकम करें दीज कंडीशंस इश्यूज को, तो वो चैलेंजेस हम कौन कौन से फेस कर रहे हैं? I get your question. Challenges मैं खुद दिन में 10 से 100 फेस करती हूँ एंड आई रियली वांट टू बी इन दैट प्लेस कि मैं काश ओवरनाइट इसको चेंज कर सकूं। बहुत सारी चीजें। इट्स अ वेरी गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। देखिए, एक बात तो क्लियर कर लें कि कंप्लीटली साइबर क्राइम खत्म नहीं हो सकता। अब मुझे लगता है एंड इन अ फ्यू इयर्स, मुझे लगता नहीं, आई एम श्योर अबाउट इट, कि क्राइम्स जो हैं वो फिजिकल या इन पर्सन से ज्यादा साइबर पर शिफ्ट कर जाएंगे, बिकॉज वी आर लाइक डे बाय डे हम लोग तरक्की करते, तरक्की क्या कहूँ मैं, हम लोग एक्सेल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टेक्नोलॉजी एंड एआई एंड रोबोटिक्स एंड व्हाट नॉट। एड्रेसिंग द क्वेश्चन के हम चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस लॉ में परफेक्ट नहीं है और आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन का तो हमारे पास सदा से ही प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी। हम इस एक्ट के अंदर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं कि एक डेटा जो क्लाइंट ने या मेरी क्लाइंट ने एज अ प्राइवेट कंप्लेनेंट एफआईए के हवाले किया है, नॉट टू बी सीन बाय एनीवन, व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट टू बी सीन बाय एनीवन, वो एफआईए की चौकीदार के फोन तक में भी से आपको मिल जाता है।
दिस इज वन पॉलिसी लैब, ये ग्रे एरिया है, ग्रे क्या ब्लैक, बिल्कुल इट्स ब्लैक होल। मेरे पास जब कोई क्लाइंट आती है तो मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि ये डाटा जिस ऑफिसर को दे रही हूँ उसी के पास रहे, फिर अंदर फोरेंसिक में जा रही है चीजें, फोरेंसिक में भी जाहिर है कि जो आपकी डिवाइसेस गई हैं, लैपटॉप्स गए हुए हैं, जो आपको फोन्स गए हुए हैं, उनके अंदर से जो डाटा निकल रहा है जाहिर है वो उनके हाथ में, और वो उनके लिए बड़ा इजी है उसको कहीं पे भी ट्रांसमिट कर देना। सो हम लोग उस एंड के ऊपर बहुत सारी फिर चीजें देखते हैं। फिर देन हमारी जो जुडिशरी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जहां मैं ये कह रही हूँ ना कि सेक्शन 20 और 21 के ऊपर इमीडिएट एक्शन भी होता है, अरेस्ट भी हो जाते हैं, एफआईए भी बड़ा काम करती है, अरेस्ट करती है। जब वो हाईकोर्ट के लेवल पे बेल्स लेने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पे हमारे जजेस लॉ के ऊपर जज करने की बजाय उनको जज करते हैं एज विक्टिम ब्लेमिंग, जो कि हमारा सबसे बड़ी मुसीबत है हर क्राइम के ऊपर। और ये मैं ज्यादातर खवातीन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ बिकॉज ये होता ज्यादा उन्हीं के साथ है। यू माइट अग्री विद मी ऑन दैट। तो इस तरह की कई छोटी छोटी चीजें हैं। अभी भी लॉ के अंदर काफी ज्यादा लैग है। एक चीज जो है कि अभी जब तक आपका डाटा पब्लिक नहीं हो जाता तब तक वो उस तरह एक्शनेबल नहीं है। सो अगर कोई आपका डाटा रख के आपको पब्लिक करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है तो ये कोई सवाब का काम तो नहीं है ना। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली प्रैक्टिस से या थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से मेरे सामने आई हैं। और फिर हम अब जब हम पॉलिसी की बात है और जब हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं और जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो फिर इसमें बहुत सारी बिहेवियर रिफॉर्म्स की, खास तौर पे हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, एट टाइम्स मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं दैट एफआईए के अंदर से, आप लोगों ने देखा होगा काफी ज्यादा एक स्कैंडल भी आया कि एफआईए के डायरेक्टर ने ही इन खातून को हरास कर दिया। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि एड्रेस होने वाली हैं। आई होप इट आंसर योर क्यूरी। There is another guy who want to ask question. Samir Hussain. Samir, जी जी I have unmuted you. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे कि आजकल जैसे कोई पेज है, कोई मीम बना रहा है किसी, उसमें प्रॉपर लाइंस उसमें लिख रहा है, क्या उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है या कर सकते हैं कि लॉ बन सकता है? देखें अगर तो वो डेफामेटरी है, देखें आपने ऑनलाइन पब्लिश कर दी, अगेन द सेम वर्ड डिजिटल फुटप्रिंट तो आ गया, पब्लिशिंग हो गई। तो अगर वो किसी की डिग्निटी को, अगर वो किसी की सिक्योरिटी को, अगर वो किसी की प्राइवेट लाइफ को ब्रीच कर रही है तो फिर बिल्कुल वो एंड इवन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हम ये देखते हैं कि थ्रू मीम्स, थ्रू इनडायरेक्ट ह्यूमर हम एक दूसरे को रिलीजियसली हर्ट कर रहे होते हैं। एट टाइम्स माइनॉरिटीज मुस्लिम्स को कर रही होती हैं, मुस्लिम्स माइनॉरिटीज को कर रहे होते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हम फिर ये तो दिस इज रॉन्ग, राइट? ये तो हम नहीं कर सकते ना। तो दिस इज व्हाट दिस लॉ इज अबाउट एंड दिस इज व्हाट ऑल द लॉ इज अबाउट, दैट यू डोंट हैव टू ट्रेसपास थ्रू एनीवन्स फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। तो यस, इट्स क्वाइट एक्शनेबल। चैट बॉक्स में है हाउ डू वी डील विद ब्लैकमेलर, मैंने बहुत एक्सटेंसिव, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताया है कि किस किस्म की ब्लैकमेलर को आपने किस तरह से डील करना है और किसको आपने खुद डील करना है और किसको आपने थ्रू लॉयर डील करना है। अगेन आपका ये मेरा जब रिकॉर्डेड सेशन चलेगा तो काइंडली यू कैन वॉच इट अगेन। जी एक और क्वेश्चन है जी, प्लीज मोइज यू हैव अ क्वेश्चन, गो अहेड। यस मैम, थैंक यू मैम। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में हमारे इशू जो है लॉ इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर जो है हमारे पाकिस्तान में लॉ इम्प्लीमेंट 100% किया जाता तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन 100% दे सकते हैं कि इश्यूज नहीं आएंगे और प्रेजेंट में भी ओवरकम हो सकते थे। पास्ट से लेके अभी तक जो है प्रेजेंट तक परसेंटेज का जो रेशो है वो कम होता जाए ना, वो प्रेजेंटली भी बढ़ रहा है और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड कंडीशन है कि ग्राफ इसका बढ़ेगा ही। तो इसका तो हम कह सकते हैं कि इन पाकिस्तान के इम्प्लीमेंट इसका नहीं हो रहा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट साइड प्रैक्टिसेस we do to help Pakistani peoples to prevent these issues? Side practices as a I'm going to stick to the previous opinion and argument I have कि 100% तो अमेरिका भी काबू नहीं पा सकता। मैं बता रही हूँ आपको, आई हैव बीन attending international conferences, I'm meeting with those people, वो लोग
ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने आके बोला कि जो पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है वो बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं, दे आर गोइंग इनटू अ राइट डायरेक्शन। इम्प्लीमेंटेशन का तो देखिए जेनेरिक प्रॉब्लम है ना, आप कोई भी लॉ उठा लें, मैं आपको यहाँ 10 लॉज गिनवा के दे सकती हूँ जो कि ऑन द बुक तो हैं, लेकिन उनकी ना उनकी प्रैक्टिस है ना उनकी उस तरह से एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। तो इट्स अ जेनेरिक इशू। टॉकिंग अबाउट साइबर एंड साइबर बुलिंग एंड ऑल दी साइबर थ्रेट्स, हम लोग बहुत बुरी कंडीशन में नहीं है, बट हम बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। यस, समवेयर डेवलपिंग इन दैट मैनर, और उसके अंदर सिर्फ एक बंदे का किसी का कसूर नहीं है। सो व्हेन all the stakeholders, they have to work together, whether it's lawyers, whether it's judiciary, whether it's the people who needs to understand कि क्या करना है क्या नहीं। Now coming back कि as society हम क्या कर सकते हैं। So मैं आपको दो तीन like my organization, the name of my organization is Legal Prism Legal Research Center. It's a research center and it's a pro bono law clinic. हम लोग एक सर्टन परसेंटेज के ऊपर फ्री केसेस करते हैं, और मेरे इस क्लिनिक के अंडर हमारे पास देयर इज अ टीम, हम आपकी इस तरह की कंप्लेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और हैं जो एज सिविल सोसाइटी काम कर रही हैं। क्या लेकिन एंड ऑफ द डे हमने भी तो जाके FIM कंप्लेन करनी है ना। तो द सिस्टम ऑफ अ कंट्री हैज टू बी अपराइट एंड द सिस्टम हैज टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन इन ऑर्डर। जाहिर है हम लोग तो आपको मैक्सिमम ये कर सकते हैं ना, मैं और आप ये कर सकते हैं कि हम फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दें, या मैं रात के इस टाइम बैठ के एक अवेयरनेस सेशन दे दूं जिसपे से किसी को कोई फायदा हो जाए। इज दैट सो? There is another question of Usman in chat box, so I'm recalling it. Can we record someone's call and provide it as an evidence if that person is harassing and threatening us? Secondly, on what kind of pictures, calls, or text there will be a strong case that can be pursued properly by FIM? मुझे नहीं पता व्हाट इज योर क्वेश्चन। आपका द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। आप ये कह रहे हैं कि कॉल रिकॉर्ड आप कर लें, किसी की कॉल रिकॉर्ड करना या किसी की कोई रिकॉर्डिंग करना विदाउट हिज और हर कंसेंट इज अ क्राइम, ठीक है, आप नहीं कर सकते। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द कॉल, बीच में कोई आपको धमकियां दे रहा है, जो मर्जी कर रहा है, लेकिन अगर आप एविडेंस उसको लेके जब जाते हैं किसी भी लॉ एनफोर्समेंट के पास, तो द फर्स्ट थिंग इज कंसेंट is a broader subject, right? लेकिन हाँ, बिल्कुल इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये बड़ा आपने ट्रिकी है। ये जब आप किसी लॉयर के हाथ में अपना केस इस तरह का अल्लाह ना करे हो तो देंगे, तो वही आपको फिर बेहतर बता सकता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वो रिकॉर्डिंग आपकी यूज हो सकती है अगेंस्ट द ब्लैकमेलर। दूसरा, व्हाट वाज द अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन? आई एम सॉरी, इफ यू कैन प्लीज कम अगेन। They were asking कि किस टाइप की रिकॉर्डिंग्स या पिक्चर्स हों जो एक वैलिड स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो सकती हैं कि हरास की गई है। सेशन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स, पोस्ट पिक्चर्स, इफ आई मे बी वेरी क्लियर, मतलब वेरी डायरेक्ट, जो न्यूड पिक्चर्स होती हैं, न्यूड वीडियोस हैं, आप किसी की पिक्चर के ऊपर कोई और पोस्टिंग करके उसको पॉर्न साइट्स पे चढ़ा देते हैं या डार्क वेब पे बेच देते हैं, या उसके ऊपर इस तरह की कोई इलीगैलिटी करते हैं, विच इज हम देखते रहते हैं कि AI जनरेटेड पिक्चर्स, फोटोशॉप एंड व्हाट नॉट, ये सब कुछ क्राइम है। आई थिंक दिस इज कॉमन सेंस। और इवन किसी की नॉर्मल पिक्चर भी आप किसी की कंसेंट के बगैर आप यूज कर रहे हैं, यूज इन अ सेंस कि आपने उसको अपने किसी सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, या आप उसको कहीं और दिखा रहे हैं, या इवन अपने फोन में रख रहे हैं, that is not, you are not supposed to do this until unless that person has allowed you to do so. Ma'am, I think all the questions are addressed, so we should end our meeting here. Once again, thank you so much for being here and sharing valuable insights. ये बहुत आउट ऑफ एक क्वेश्चन आया है करियर के बारे में। करियर के बारे में जी आप मेरे साथ एक फिर अगेन सेशन स्केड्यूल करें, मैं आपको जरूर टिप्स दूंगी। एंड फॉर दैट मैटर किसी ने पूछा है कि रिसर्च सेंटर मैं दे देती हूँ, आपको दे देती हूँ या किसी को। द नेम ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन इज लीगल प्रिज्म रिसर्च सेंटर एंड लॉ क्लिनिक। वी आर ऑन फेसबुक, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन सर्च अस, या मेरे हैंडल पे जाके आपको उसका हैंडल मिल जाएगा। तो हमारी अपॉर्चुनिटीज वगैरह खुलती रहती हैं। अभी भी हमारी बिकॉज एवरी ईयर वी डू अ समर प्रोजेक्ट और उसमें मैं इंटर्न्स हायर करती हूँ।
स्नैपचैट इमेजेस कैन बी सेव बाय रिकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, मैं यही आपसे बात कर रही हूँ ना कि ये खुदा का वास्ते अपने दिमाग से निकाल दें कि स्नैपचैट सेफ है। स्नैपचैट इज नॉट सेफ एट ऑल। किसी के, आपको क्या पता किसी के पास दूसरा फोन है? आप आराम से स्नैपचैट पे ये सोच के लगे हुए हैं कि जी ये तो उड़ है साथ साथ, और अगले के पास दूसरा फोन हो। यस, व्हेन यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ स्नैपचैट चैट बॉक्स, तो उस पे लिखा आ जाता है दैट यू नो फलाना फलाना has taken your screenshot. But what if someone has another phone, and if it's recording, and if it's taking your pictures, and if it's recording your conversation through another phone, और वो उसको बाद में आपको फिर blackmail करे? So please just get out of this illusion. It's end of 2024 now. And with the career thing, आप एक और सेशन मेरे साथ schedule कर लें, तो wherever I can help. Sure, ma'am. सोशल मीडिया चैनल मैंने अपने इंस्टाग्राम और वो लिंक शेयर कर दी हैं। आप मुझे वहां पे मैसेजेस भेजें। माय टीम इज गोइंग टू आंसर यू बैक। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. And we are ending pleasure. our meeting now.